Hi everyone, my name is Priya Kaur. Assalamu alaikum, my name is Aina Rafiq Shah. Noman, Mohammad Arif, Zaisha Soga Manzoor Qadri. Dayan, Ayan Mazhar, Simra Sikandar. Siha. Tafi Warsan Naveed, Mueed Nisar, Ayman Khan. मेरा हाई स्कोर था, it was 720 एक्चुअली. तो it wasn't once, मतलब 2-3 बार हुआ था. तो मेरा ये था कि मैंने उसको अपने सर तक जाने नहीं दिया. The thing is कि you should remember this too shall pass. तुम्हें अभी जो लग रहा है कि मेरा कोई स्कोर ज़्यादा ही हाई रह रहा है कि कोई बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं. आज तुम हाई कर रहे हो, अगर तुमने इसको अपने सर तक जाने दिया, कल तुम वापस उसी जगह पे आ जाओगे जहाँ से तुमने स्टार्ट किया. High score was 690 and I was feeling very much proud of myself. My highest score in mock test was 695 and after that I was like easy, I can easily score 690 तक तो, and in actual exam I got 690. मेरा कुछ I think 650 marks आए थे, so that was the highest. 700 था mock test. और 700 My highest score was 688 points and उसके बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर ज़्यादा स्कोर हुआ तो आप ओवर कॉन्फिडेंट वगैरह हो, तो आपको कंसिस्टेंटली फिर से वैसे ही पढ़ना है जैसे पहले. 695. 715. around 700. 620. My highest score in mock test was 695. Highest score was 690. तो मेरा लोएस्ट स्कोर था आई थिंक 490 एंड उस दिन मुझे काफ़ी डाउन फील हुआ था कि मैंने इतना कम क्यों स्कोर किया, बट आई थिंक डाउन फील करना भी कभी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट अगेन थोड़ा आपको वो पुश देता है कि यू हैव टू मेक मोर एंड मोर एफर्ट्स. तो आई रिमेंबर उस टाइम फिजिक्स ही था जिससे मुझे सबसे कम स्कोर था. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग किए थे, सो आई ट्राइड मोर क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस की और ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन किए. I think I scored 408 or 480, I'm not sure. But I've also scored lower. That wasn't the mock, that was some online AIATS exam. So I thought I could take more time because they won't know. And then I gave the paper, I think 3.5 hours late, and then I got 0 in physics. Lowest score was around 470 something. And जब 470 score आया ना मेरा, it was a bit depressing. But I knew कि मेरे को किस तरीके के सवाल पूछे गए वहाँ से. It was a bit tough. हाँ, starting में test series. Actually, you're warming up yourself. It takes time, so it's nothing to worry about. आप just करते जाओ. You just have to follow a discipline. You have to be consistent. Persistence दिखानी है आपको, and then automatically you will gain confidence. So my lowest score was 530. I was a little bit disheartened, but the paper was very tough. But I was very confident that my preparation is up to the mark. So it kept on improving after that. 620. My lowest score was 535. तो उसके बाद इंसान काफ़ी डीमोटिवेट हो जाता है. असली में स्टार्टिंग के जब मॉक टेस्ट थे तब स्कोर कम रहता है और आराम से फिर खुद इंक्रीज़ हो जाता है. तो उस पॉइंट पर हमें डीमोटिवेट नहीं होना है एंड वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स. My lowest score was, I guess, 613. My lowest score was 523 around. It was kind of disappointing, but I used it as a learning experience to improve on my weak areas. I analyzed my mistakes and saw what I have to do. I revised again and again. Lowest score in mock test was 550 and उसके बाद I was literally highly demotivated and I was like कि अब तो नहीं होगा, बहुत कम स्कोर है. Lowest score initially था that was 570. Lowest score 635. My lowest score in mock test was around I guess 640. 630 640 के बीच में कुछ था. Lowest score वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बट 300 के आसपास. फिर क्या रिएक्शन था उसके बाद? कुछ नहीं, मैं घर चला गया. मैंने सोचा अगले टेस्ट की तैयारी करते हैं. अगर आपकी पेपर सॉल्व करने की स्पीड बहुत तेज़ है तो आप पेपर 2 बार अटैम्प्ट कर सकते हैं. अब 3 घंटे का पेपर है तो पहले राउंड में आप 1.5 आवर में कर सकते हैं और सेकंड राउंड में आप अगले 1.5 घंटे में पेपर कर सकते हैं. इससे आपकी जो एरर की चांसेस है बहुत मिनिमाइज हो जाए. During my mock test, I would always do the silly mistakes. For overcoming those silly mistakes, I used to make a separate notebook for that and used to write those mistakes on that notebook and revise those mistakes again and again so that I cannot repeat those mistakes in the next mock test. आई वॉज अ स्टूडेंट जिसको फिज़िक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. मैंने पढ़ लिया था कुछ फिर बाय द एंड, लेकिन मुझे पसंद नहीं था. तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पसंद नहीं है फ़िज़िक्स पढ़ना, यू कैन डू अ थिंग कि हर दिन एवरी सिंगल डे आप कुछ ना कुछ टाइम दो फिज़िक्स को. अपार्ट फ्रॉम क्या आप कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आज आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके अलावा भी यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 घंटा आप दो फिज़िक्स को. 5 न्यूमेरिकल्स करो, 4, कभी 3 करो, बट अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ कर लोगे उससे आपका इनर्शिया थोड़ा इट विल गो अवे. You can worry about your exams and skip your hobbies and everything all you want,
but don't think about your exams when you are studying, because the science is simple. If you want to remember what you study, like you remember your favorite movie, you should study like you'd study your favorite subject. थैंक यू फॉर स्टिकिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पर इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक और अच्छी इनोवेटिव चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, टेक नर्चर लैब्स। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक बहुत अच्छा कॉज है, और जो भी स्टूडेंट्स 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में और उन्हें लगता है कि उन्हें अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखनी चाहिए, उनके लिए AI, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग एक बहुत अच्छा कॉज हो सकता है। Tech Nurture Labs is an AI robotics and coding lab which also focuses on STEM education. हमारे सेंटर पे हम स्टूडेंट्स को AI कोडिंग और रोबोटिक्स के कोर्सेज दे रहे हैं, हम उनको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, हम उनको चैटबॉट्स बनाना सिखा रहे हैं, हम उनको वर्चुअल असिस्टेंट बनाना सिखा रहे हैं, हम उनको AI रोबोट्स बनाना सिखा रहे हैं, जैसे वॉइस कंट्रोल रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। Today I am working on a voice control car which uses NLP system to understand my language and run the motors accordingly. तो हमारे यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को 10-day कोर्सेज, 30-day कोर्सेज और एडवांस कोर्सेज भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनको पाइथन प्रोग्रामिंग, जहाँ पर उनको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पर उनको वेरियस लाइब्रेरीज विच आर इंक्लूडेड इन पाइथन के बारे में सिखाया जाएगा, उनको रोबोट्स बनाना सिखाया जाएगा, और रोबोट्स को कैसे ऑपरेट करना है टू डू वेरियस टास्क, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स, एक कैसे वो मल्टीटास्किंग रोबोट हुआ या इंटरैक्टिव रोबोट हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में सिखा रहे हैं। What is your job here? My job is to help humanity prosper. Wink wink. ठीक है, तो अगर आप टेक नर्चर लैब्स में इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी वेबसाइट और फ़ोन नंबर दोनों मिल जाएंगे। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारे कोर्सेज हर किसी के लिए मिलेंगे। मेक श्योर यू डू चेक दैट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।